बट मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, when you stand in front of the mirror, you should always be proud of yourself and be happy to see yourself. Never do anything that will take the pride away from you. Hello everyone, I'm Rachna Rajke Bagwe. I'm covering 365 days, 365 stories. And today, along with us, we have Dr. Suhani Mendonsa, who is an influencer, who is an Instagram influencer. She influences many people. She has been working since last many years. And she also runs a Mendoza Foundation. We will know about her. Hello, ma'am. Hello, everyone. It's delightful to be here present today on this wonderful young lady, Rachna Lachke Bagwe's talk show, who is doing a wonderful initiative, 365 days, and each day a new story. Isn't that wonderful? Thank you so much for inviting me and having me here. It's truly an honor. Thank you, ma'am. The pleasure is all mine. Ma'am, you have been working since a very young age. You have Yes, started working and earning at the age of 15. So, what made correct. you start earning at a very young age, and what is the importance of being financially independent? So, thank you, Rachna, for the question that you asked, because I think when you're growing up, your growing up days is your basic foundation for the rest of your life that you're going to lead. And I think when you're growing up as a teenager, as a youth, especially when you come into your teens, you're very aware of your surroundings, of what's happening, right? And when you see that the harsh realities around you, and the challenging circumstances which are put across to you, um, and as a young child, sometimes you feel that how do I face this? What do I do? And then you say, no, I have that in me. I have the might in me, and I am going to stand for myself, for my individuality, and I am going to be independent whatsoever. So, उन दिनों में ऐसा था कि अ, एक पैसे की जरूरत थी, एंड जब एक 13 वर्ष की बच्ची ये देखती है, तो उस पे ये बहुत असर होता है. And that's how I guess I started uh, earning early in life at the age of 15, and my first earnings were as a mehendi artist. And I thoroughly enjoyed that bit. So right from 15 to about 21, 22, whatever came my way, whatever work came my way, and it was legal, I did it. तो ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं ये काम कैसे करूं, या मैं ये काम कर सकती हूं कि नहीं. नहीं, वो सोच थी ही नहीं. सोच क्या थी, मुझे पैसे मिल गए, आई कैन अर्न माई ओन मनी. मुझे किसी के सामने मेरे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ता है. मैं अपना पैसा खुद कमा रही हूँ. बस यही सोच इतना हावी हो गया था मुझ पे. वो सोच इतनी हावी हो गई थी कि बस कुछ भी करके मुझे अपना पैसा कमाना है, और कुछ था ही नहीं. तो दैट्स हाउ लाइफ टुक मी अहेड, एंड जो भी आते गया, आई डिड एवरीथिंग. तो अगर रचना, अभी आप मुझे पूछोगे कि उस जमाने में आपने ये काम किया था, तो शायद मैं हाँ ही बोलूं. क्योंकि whether it was in marketing, door-to-door marketing, marketing products at petrol pump, marketing products at traffic signals, working as a sales girl, working backstage at fashion shows, working in production. I mean, जो भी आया,
कभी ना नहीं बोला। तो आई थिंक उससे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ रचना, क्योंकि आज अगर मुझे किसी से बात करनी पड़ती है तो मैं कभी सोचती नहीं, चाहे वो रास्ते पे चलता कोई कोई आदमी हो, पान वाला हो, पुलिस मैन हो, सीईओ हो, कंपनी का सीईओ हो, या कोई भी हो, इट डजंट बॉदर मी, या कोई सेलिब्रिटी हो। अगर मुझे आपसे जाके हेलो बोलना है तो मैं जरूर जाऊंगी यू नो। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत काम आया, एंड इट मेड मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड वो पर्सनालिटी, क्योंकि मैं बचपन से काफी जिद्दी थी, स्टबर्न थी, और मेरे पापा बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स। तो उनके लिए इट वाज इधर माई वे और द हाईवे। पर उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी भी उनकी जैसी ही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड है। तो मैंने एक अपना बना लिया था, और मैं बहुत ही नसीब वाली थी कि मेरी माँ जो थी वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट थी, वो मेरी सबसे बड़ी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी। और जो भी मुझे करना था, और जो भी मैंने अपनी जिंदगी में किया, अ, मेरी माँ मेरी दोस्त की तरह थी, लिटरली। और उससे ज्यादा भी बहुत अच्छी बात थी कि वो दोस्त की तरह भी थी, पर सिर्फ उसकी आंखें वो बड़ी हो जाती थी ना, तो हम लोग सब चुप हो जाते थे, दैट वाज इनफ। तो शी न्यू हाउ टू बैलेंस इट वेल। और उन्हें पता था कि ये एक बच्ची ऐसी है, अगर इफ आई विल नॉट गिव हर द लीवे, शायद वो मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसे भी हो सकता था, बट आई गेस आई वाज सो लकी टू हैव हर ऑलवेज, हर सपोर्ट ऑलवेज। तो ऐसा कभी मौका आया ही नहीं। और बस चलते चलते ऐसा हो गया कि अ, एक अपॉर्चुनिटी आई, और मुझे इवेंट करने का मौका मिला, वो भी वेडिंग प्लानिंग। पर उसके पहले मैंने एक गेम शो पायनियर किया था, वो बहुत चला था। इट वॉज कॉल्ड करियो के अंताक्षरी। तो जब मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में थी ना, तब जो भी मैंने कहा ना, वॉट एवर केम माई वे आई डिड। तो आई यूज टू ऑल्सो सिंग, आई यूज टू ऑल्सो कॉम्पेयर, आई यूज टू ऑल्सो कोरियोग्राफ, वो सब भी मैं करती थी, तो ऐसा हुआ था कि मेरी एक दोस्त को जरूरत थी, एंड वी मेट फॉर कॉफी। और पता है ना, लड़कियां जब मिलती है तो यहाँ वहां की हम बहुत सारी बातें करती है, और फिर हम भूल जाती है वो बातें, राइट। पर अगर कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, तो वो आप जरूर याद रखोगे। तो मेरी दोस्त ने वो याद रखा। और क्या हुआ, जब वो मिली उसने कहा कि यू आर वेरी गुड एट हैंडलिंग a crowd of people, and you're very good on the mic. तो आई एम हैविंग 50 women for high tea, और तुम्हें उनके लिए एंटरटेनमेंट करना है। तो मैंने तो अपने मजे मजे मजाक में कहा कि हाँ हाँ कर देंगे, जो वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड एंड आई रियली मेंट दैट। बट मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी हो जाएगा। within a few days she sent me a letter, और मुझे लेटर पे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दिखा एंटरटेनमेंट बाय सुहानी। मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग, मैंने फोन उठाया, सर आर यू मैड? तो उसने कहा कि आई मीन व्हाट एंटरटेनमेंट, सिर्फ लिख दिया एंटरटेनमेंट। सो शी सेड नो नो, I know you will manage it. Man, this is already gone. We've got 100 members. This is already gone to 100 women. 50 will definitely show up, so you better be ready. सोचा सोचा क्या करे क्या करे, एंड देन अंताक्षरी इज अ हाउस होल्ड गेम, सबके घरों में अंताक्षरी तो कभी ना कभी हम खेले हैं, राइट। और बॉलीवुड से भी हम लोग का बहुत गहरा नाता है कभी ना कहीं, राइट। तो मैंने एक गेम शो कर दिया, एंड द गेम शो वाज कॉल्ड करियोके अंताक्षरी। तो उसमें बहुत मजेदार से राउंड्स मैंने किए थे, और टीम, इट वाज अ टीम बेस्ड गेम। तो अगर 50 महिलाएं हैं तो उसको 4 टीम में मैंने बांट दिया। हर एक टीम को मैंने अलग अलग बैंड दिए थे,
स्टिकर्स दिए थे किसको, या ऐसा करके हमने 4 टीम बना दी और मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे राउंड्स किए थे, तो सबको बहुत पसंद आया। रचना आप मानोगे नहीं, उसके बाद माय वीकेंड्स वर नेवर माइंड। Wow. मुझे फोन आ जाता था एंड I used to always be from one party to another party, from one kitty party to another kitty party, from women's gatherings to corporate parties I did, फिर pre-wedding parties I did. मेरे through my karaoke show, it was the time where the boys side and the girls side used to meet, and that's the time they used to get to know each other through the karaoke game show, and it was to be a lot of fun. So breaking the ice was the thing what the karaoke would do for them. एंड बहुत मजा आता था ये गेम शो करके। उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई जो इवेंट में काफी कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक शादी का आया है एंड वुड यू लाइक टू डू इट। सो आई सेड ओके ठीक है। और द वे ही पुट इट वाज वेरी फनी। उसने बोला कि चल हम लोग शादी करते हैं, तो बेसिकली उसका कहना था कि विल डू वेडिंग्स। मैंने कहा भाई शादी कहाँ, तुम्हारी शादी हो गई थी तब मेरी शादी हो गई थी। ऐसे हाउ कैन वी डू दैट? सिंग नो नो नो, यू मिसअंडरस्टूड मी भाई, लेट्स प्लान वेडिंग्स। And that's how we started doing. I got my first wedding, and to get my first wedding, आप मानोगे नहीं, I had to have almost 45 meetings with my client, 45 meetings with my client. And वो एक रहता है ना persistence कि नहीं मुझे कुछ भी करके ये इवेंट लाइन में जाना है, because that was very much me, that was what Suhani is all about. तो बहुत कुछ भी करके मुझे वो चाहिए था, एंड गॉड विलिंग आई गॉट इट। आई गॉट द इवेंट। पहला वाला इवेंट था तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी, और आधा पहला वेडिंग था, बहुत ही एक्साइटमेंट थी, मैंने कर लिया। एंड उसके बाद I got a lot of opportunities. So I did my first corporate event, I did my first stage show, I did my first fashion show, I did my first book launch, but it was never the last. एंड हमारा ऐसा था कि हमारे जो क्लाइंटेल के साथ हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा रहता था, एंड इट वाज सो स्ट्रॉन्ग, द बॉन्ड बिटवीन अस वाज सो स्ट्रॉन्ग। एंड कई कई क्लाइंट्स ऐसे होते थे कि वो हमारे बिना इवेंट्स नहीं करते थे, तो अगर हम ट्रैवल करते थे तो दे यूज्ड टू वेट फॉर अस टू कम बैक, एंड देन जैसे ठीक है अभी अभी ये डेट पे हम लोग करेंगे क्योंकि सुहानी वापस आ गई। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था, एंड इट यूज्ड टू मोटिवेट मी टू डू बेटर ऑलवेज, कि कुछ भी करके ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ हमारे जो क्लाइंट ने हमको ये इवेंट दिया वो नहीं, पर हर एक गेस्ट जो आता है he should go back with a smile and he should go back with happy memories. So that's how my event business started, Yellow Spider Events. And uh, social work is something I've always done since I was 15. जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, पहली सैलरी भी नहीं उसको कहता है, पहली अर्निंग्स, क्योंकि मेहंदी का ऐसा था कि जैसे आप मेहंदी जाके लगाते हो फंक्शन पे हो जाता था, तुरंत हमें पैसा मिल जाता था। तो मेरा फर्स्ट अर्निंग्स वो ऐसा मेहंदी आर्टिस्ट था। और जब मैं घर पे लौट रही थी तो मैंने एक महिला को देखा था, अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, करीब थी वो, और मुझे पता नहीं क्यों एक थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, एंड ऐसे ही खाने के लिए रो रहे थे, एक रो रहा था, एक रोड पे क्रॉल कर रहा था, और एक एक ऐसा एक एंजाइटी हुई कि आई जस्ट वेंट टू हर एंड मैंने पूछा उसे, अगर आप खुद खाना नहीं अपने लिए खा सक आपकी आप फॉर योर ओन मील यू कैन नॉट पे, व्हाई डिड यू हैव सो मेनी चिल्ड्रन? व्हाट आई मीन, आई वाज जस्ट अ टीनेजर देन। एक 15 वर्ष की बच्ची के मन में जो था उसने आके उससे बता दिया। तो आई सेड व्हाई डिड यू डू दिस, क्यों आपने इतने सारे बच्चे किए? तो उसने कहा मुझे कि क्या करे, ये तो भगवान की देन है। एंड आई गॉट वेरी एंग्री एंड आई सेड नहीं,
बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो चौंक गई कि इसे क्या हुआ। एंड मेरे पास जो मेरी जो पहली कमाई थी उसमें से मैंने पैसे उसको दिए, थोड़े उसमें से थोड़ा से पैसे उसको दे दिए और कहा कि ये पैसे अपने बच्चों के लिए रखना और देखना कि उनकी स्थिति तुम्हारी तरह कभी ना हो। कभी उन्हें ऐसे मौका ना मिले कि वो भी रास्ते पे अपने बच्चों के साथ बैठे हो और खाने के लिए तरस रहे। ये बहुत ही गलत बात है। और तब से मेरी जो शुरुआत हुई सोशल वर्क की, आई थिंक आज इतने साल हो गए, हम लोग अभी भी कर रहे हैं। हमारा खुद का फाउंडेशन है, मेंडोंसा फाउंडेशन, और मैं उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। और काफी सारी इनिशिएटिव्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये आप मेरे बैकड्रॉप पे देख रहे हैं, ये हमारा अभी वाला इनिशिएटिव था, अब हर कोई बन सकता है बिजनेसमैन वुमन। हिंदुस्तान टाइम्स had also covered it. एंड इसमें हमने क्या किया था, हम लोग स्लम्स में गए थे और हर एक स्लम ड्वेलर को कहा कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है तो प्लीज आप आके हमें पिच कीजिए। अगर वो इकोनॉमिकली वायबल है, अगर वो सस्टेनेबल है और स्केलेबल है, तो हम जरूर आपको फंडिंग का, वी विल गेट यू फंडिंग फॉर इट। तो ऐसा हुआ कि रचना पहले तो कोई समझा नहीं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस के हम लोग क्या करना चाहते थे। एंड उसके बाद हमें 75 रजिस्ट्रेशन मिले, और उसमें से हमारे जो टॉप 10 थे, उसमें से हमारे टॉप 4 को एक अपॉर्चुनिटी मिला, और वो भी दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पिच देयर बिजनेस आइडिया इन फ्रंट ऑफ 300 इन्वेस्टर्स, अ पूल ऑफ 300 इन्वेस्टर्स। एंड आई रियली हैव टू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल, हैव टू थैंक the Narvekar Parivar who supported us right through the initiative. I have to thank Cap Savvy because उनके वजह से हमें सीट फंडिंग का सपोर्ट मिला. And of course, I have to thank my team who worked relentlessly all throughout. And it was really great to see that, such initiatives can change somebody's life. That was truly inspiring, madam, कि आपने जो कहा कि at the age of 13, sorry, at the age of 15 you started earning. और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द इसमें कहा कि जो भी लीगल काम से मैं पैसा कमाऊंगी, क्योंकि वो एज में लीगल काम से पैसा कमाना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन यू आर यू वांट दैट मनी। Yeah, तभी yeah. जो मिले वैसे कई दफा हो जाता है कि जो जी, टीनेजर्स होते हैं, जैसे भी पैसे मिले फिर वो कोई जी, भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो कर लेते हैं। पर आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द यूज किया कि जो लीगल है वही मैं गलत. काम करके पैसे कमाऊंगी। जी, एंड जी, जी. इससे समझ में आता है कि आप मतलब कितना ट्रूली इंस्पिरेशनल और ट्रूली इन्फ्लुएंसिंग हो। थैंक यू। फिर आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें इसमें कही कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली लड़कियों के लिए हमारे जो पिताजी होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते कई बार। और जो माता जी होती है, जो मम्मी रहती है हमारी, वो हमेशा हमें बैकअप करते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करो। और यही आपके इस घर पे भी हुआ और आपके मम्मी ने हर बार सपोर्ट किया आपको। तो फिर जी. उसके बारे में थोड़ा और बताइए। तो ऐसा रहता था कि पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. वी हैड टू बी होम बाय 7 o'clock, कुछ भी हो जाए, कॉलेज के दरमियान भी हम लोग जाते थे एंड ऑल. कुछ भी हो जाए, इवेंट हो, कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, यू हैड टू बी होम बाय 7 o'clock बस, उससे आगे ना पीछे. इट वाज अ स्ट्रिक्ट रूल. तो मैं मम्मी को हमेशा, मम्मी ने देखा था कि ये लड़की अपना खुद का फ्यूचर बनाना चाहती है. तो वो हमेशा कहती थी कि बेटा तुम्हें जो करने का है तुम करो, आई एम देयर सपोर्टिंग यू. शायद सिर्फ एक ही बार उन्होंने, क्योंकि क्या होता था जब मैं घर पे आती थी ना, तो सबसे पहले मैं मम्मी को ढूंढती थी. ओके, एंड आई हैड टू टेल हर एवरीथिंग कि आज ये हुआ, आज मैं इससे मिली, आज मैं यहाँ गई थी, आज मैं वहां गई थी, आज काम में ये हुआ, यू नो. एंड देन शी वुड टेल मी कि आज मेरा दिन ऐसा गया. तो इट वाज अ वेरी लवली एक्सचेंज, दैट कन्वर्सेशन आई यूज्ड टू रियली लव टू हैव इट विद माय मॉम. इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन.
तो एक ही बार जब मैं अपने काम के बारे में उन्हें बता रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा कि बेटा, ट्रैफिक सिग्नल्स पे योर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पंप्स पे योर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, तुम्हें ऐसा वोंट यू बी एम्बैरेस्ड, अगर अपने कोई पहचान वाले मिल गए तो? आई सेड, माँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ वॉट आई एम डूइंग. व्हाई शुड आई बी एम्बैरेस्ड? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, अपने मेहनत के पैसे खुद कमा रही हूँ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, राइट? एंड दैट डे माई मदर सेड, सेइंग, शाबाश बेटा, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो. बट मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, when you stand in front of the mirror, you should always be proud of yourself and be happy to see yourself. Never do anything that will take the pride away from you. और आज तक शायद हम वही कर रहे हैं. So this was the rapport which I shared with my mom, which was very, very special. And I have an elder sister who's 3 years older to me, but she was the typical, a girl who would walk straight on the line, padaku, uh, did her engineering, studied well, arranged marriage, typical, typical, typical. But she was always there supporting me, being there, and she would always share her ideas with me if I ever had any, ऐसा लगता था मन में कोई थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, तो you want to talk to your elder sister, she was always there. Yeah. और मेरा एक छोटा भाई है 9 साल का, तो फॉर हिम तो वी वर लाइक हिज मदर्स ओनली, लिटरली. क्योंकि मेरी बड़ी बहन और उनके बीच में 12 साल का फर्क है, और मेरे उसके बीच में 9 साल का फर्क है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर. एंड विद माय डैड आई डोंट थिंक ज्यादा बातें होती थी इसके बारे में, बिकॉज ही वाज ऑलवेज डेड अगेंस्ट इट. और एक ऐसा भी हो जाता है ना कि एक बार अगर किसी ने आपको कह दिया कि नहीं करना है, तो देन यू फील कि क्यों जाके उनको बोले. एंड ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी आई लाइफ में जहाँ पे मेरे काम के दौरान आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ वेल नोन पीपल. ओके, स्पेशली जब हम फैशन, रिमेम्बर जब मैंने पहली बार बैक स्टेज फैशन शो में काम किया, तब हमें कुछ बहुत ही कुछ पैसा, कम पैसा मिलता था. फ्यू हंड्रेड रुपीज वी यूज्ड टू गेट, एंड वी यूज्ड टू गो एंड हेल्प द मॉडल्स चेंज देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. And I got to see the then supermodels Meher Jasya, Arjun Rampal, all firsthand at this distance. So it was really great to see all of that, and it was wonderful कि हमको वो experience मिला. फिर जब मैं सेल्स गर्ल की तरह काम कर रही थी, तो मेरी मुलाकात मिसेस अंबानी से हुई, धीरू भाई अंबानी की पत्नी, कोकिला बहन के साथ. तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी वार्म एक्सपीरियंस. और अच्छा लगा कि जब एक इतनी बड़ी व्यक्ति आपके साथ बातें करते हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि ये लड़की अपना पैसा खुद कमा रही है, तो इट फेल्ट वेरी वेरी गुड. तो these are the experiences that you take forward. Even मेरे सोशल वर्क में, आई थिंक मैं जब 15 साल की थी, तब से मैंने जब शुरू किया, मेरी जो नेबर थी तब की, मिसेस परवीन जहांगीर, उन्होंने भी देखा कि मुझे अच्छा लगता है, अगर किसी का मैं थोड़ी हद तक भी मैं मदद कर सकती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. तो शी यूज्ड टू ऑलवेज टेक मी विथ हर फॉर. So that time, we used to go and listen to Bittu Segal, who was literally like my first crush, because very well known environmentalist, Sanctuary magazine he hai, and the Sanctuary Awards which happened every year. तो जब हम बचपन में थे, हम जाते थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बिट्टू सर के काफी सारे टॉक्स हम सुनते थे, तो दैट यूज्ड टू इंस्पायर अस. मेधा पाटकर जी की जो जंग थी उस वक्त नर्मदा के लिए, नर्मदा आंदोलन जो था, उसके लिए हम लोग सब बीच रास्ते बैठ के हम लोग ने धारणा भी की है. तो आई थिंक इट वाज ये जो
छोटी छोटी मुलाकातें होती है, तो जो जो छोटे छोटे स्टेप्स हमने लिए थे हमारी जिंदगी में एज अ यूथ, आगे चल के हमेशा वो अच्छे ही पॉजिटिवली ही काम आए हैं हमारे खुद के काम के लिए। और अभी आज मैं अपने फाउंडेशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। तो ऐसा लगता है कि कितने सारे इनिशिएटिव्स हम और करें और कितना सारा कुछ और करें। तो यस, दैट्स हाउ इट इज गोइंग ऑन। Madam, you have been working since last many years, or you have been working as an event manager. फिर आप फाउंडेशन के लिए आपके काम करते हो, बट यू आर ऑल्सो वर्किंग एज एन हाउस वाइफ. आपके घर में इन लॉज है, यू हैव चिल्ड्रन, हस्बैंड ऑब्वियसली. सो हाउ डू यू बैलेंस इट? तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। अ, मेरे दो बेटे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एक औरत के लिए जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, राइट? बिकॉज फ्रॉम मिस यू सडनली बिकम मिसेस। पर जब एक औरत माँ बनती है तो her life is not hers. Your life becomes your children's life. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। Both my kids had congenital issues. They were born with problems at birth. So my elder one has had 7 surgeries. My younger one has had 6 surgeries, and अभी तक उनकी ट्रीटमेंट चालू है। तो इसके लिए one of the causes that we work on is um, doing free of cost surgeries for children who are born in economically challenged backgrounds. That's for cleft lip palate. So my son 23 years ago was born with it. और हमने देखा था कि what we went through as educated parents, what we have gone through. तो उनके लिए तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और क्या है, अगर लड़की ऐसे जन्माती ना, कि cleft lip palate is meant with your to do with your mouth, with your lips, with your face. The children get labeled very easily, and it becomes a challenge for them to survive, right? तो ये एक हमारी फाउंडेशन में हमने, it's definitely a cause that we've been working on, and we want to do 5,000 surgeries a year, and our budgets are also really high because 5,000 surgeries करने के लिए we need almost 10 crore rupees. बिकॉज ईच सर्जरी जो बेसिक सर्जरी भी होती है उसको ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज लगता है। और ऐसा है कि अगर सिर्फ क्लेफ्ट लिप है ना तो ठीक है, एक सर्जरी में खत्म हो जाता है। पर हमेशा ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको क्लेफ्ट पैलेट होता है या बायलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, तो उन्हें आगे चल के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कितने सारी सर्जरीज करनी पड़ती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि उनका फेस का भी कुछ फीचर्स है जो उनको आगे चल के रिपेयर करने पड़ते हैं। तो there's lots which happens, फिर स्पीच थेरेपी करना पड़ता है। And it is an expensive treatment. It's not cheap. So इसके लिए I feel it's really important that we support these kind of children and their parents, because each child has a right to smile, and a smile which is a complete smile. तो हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं, and it's a mission at Mendonsa Foundation to support 1 lakh underprivileged people with their basic necessities. So balancing home life and work life was always very very important to me. हाँ, एक दौर था क्योंकि जब मेरा बेटा जब ऐसा जन्मा तो आई फेल्ट कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सिर्फ एक माँ बनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। एंड आई रिमेम्बर जब तब मेरे दोनों बेटे थे, एंड मेरे हस्बैंड घर पे आए थे और उन्होंने देखा कि मेरे दोनों बेटे नीचे बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं और मैं भी उनके साथ कार्टून देख रही हूँ, उनका कार्टून देख रही हूँ। तो मैं हमेशा उनके प्रोग्राम्स उनके साथ देखती थी बच्चों के, क्योंकि मुझे भी समझ आता था कि ये क्या देख रहे हो और ऐसा क्या है कि आप उसमें इतना ये हो गए हो कि और खास करके जब वो लोग बोलते थे, मम्मा वी वांट टू गो एंड बाय दिस टॉय, पिकाचू,
तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि पिकाचू क्या है। फिर जाके जब बैठ के उनके साथ हम लोग देखते थे, शोज देखते थे, तब पता पता चलता था कि क्या है। I remember my husband came back once and he told me that, what are you doing? So I said, I'm watching TV with the children, saying, no, but what are you doing? I said, मैं कुछ समझी नहीं। फिर उसने मेरे दोनों वहां पे अपने हाथ रखे and he said, these two children who are sitting there, they will grow up, they will fly away, you will be sitting here only. तो प्लीज अपनी जो खुद की जो क्रिएटिविटी है उसे ऐसे ही मत जाने दो, जाया मत करो, काम करो। We are all here with you. So it's really nice when you have supporting family, a wonderful husband who's always been my pillar of strength. और मैं हमेशा कहती हूँ, आज जो कुछ भी हूँ, शादी के बाद जो कुछ भी हूँ, मैं उसकी वजह से ही हूँ, because he always gave me the support to be what I wanted to be. And my kids are also wonderful. My in-laws have been wonderful. I've always stayed in a joint family with my in-laws, and it's wonderful क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जब वो अपने दादा दादी के साथ वक्त बिताते हैं, कितना कुछ सीखते हैं उनसे। ओके, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज्यादा है लाइफ का। और नाना नानी के साथ भी जब वो लोग मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड आई फील रिलेशंस बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वेरी इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन बिकॉज वी हैव सपोर्टिव फैमिली, तो कोई भी नारी कुछ भी कर सकती है। और आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। और जैसे कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, पर मैं कहती हूँ एवरीथिंग इज लिमिटलेस। आपको जहां भी पहुंचना है आप जरूर पहुंच सकते हो। Yes, that's great, madam. It is very important for any woman to have a very supportive husband, क्योंकि बहुत important होता है अगर husband support करे तो she जी, can fly easily. राइट राइट राइट। Ma'am, after pandemic, you started working as an influencer. You started your जी, own Instagram page profile, and then you राइट promoted people. You conduct various interviews also. तो आप कहीं राइट। पे भी रुके नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोग सभी को पता है कि बहुत सारे काम बंद हुए थे। हमारा भी काम बंद हुआ था बिकॉज वी आर इनटू इवेंट्स। स्टार्टेड अ न्यू वेंचर एंड यू वर्कड एज एन इन्फ्लुएंसर, तो उसके बारे में बताइए। तो पैंडेमिक की वजह से हमारी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी थी, राइट? तो पैंडेमिक की वजह से लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल और पूरा वर्ल्ड ही ऐसा थम गया था। और शायद वो टाइम पे, हाँ, मुझे बहुत असर हुआ था। आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ वेरी डाउन फेज, रादर आई वेंट थ्रू डिप्रेशन टू। पर कहते हैं ना कि अ, अगर आप में वो हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक टू मेक वीडियोस ऑनलाइन, और मुझे बहुत मजा आता था, और बॉलीवुड मेरे में कूट कूट के भरा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे बहुत सारा अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे, उन्हें बहुत पसंद आता था। तो दैट्स हाउ आई रीइन्वेंटेड माई सेल्फ एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। और तब तो मुझे कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे पोस्ट करे नहीं आता था। बट आई वॉज वेरी वेरी थैंकफुल टू माई यंगर सन क्रिश, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया और मुझे इंडिपेंडेंट भी बनाया। कहा कि माँ, आई कैन नॉट डू दिस ऑलवेज फॉर यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तो बस वैसे ही शुरू हो गया। और करते करते ऐसा हुआ कि कोई ना कोई रोज मेरे घर पे कुछ ना कुछ भेजता था, क्योंकि when they used to go to my handle, they used to like what I used to do। तो कभी कोई चॉकलेट्स बेचता था, तो कभी कोई कैंडल्स बेचता था, तो कोई स्पा सेट्स बेचते थे। तो एंड द बेस्ट वन वाज व्हेन वीगन फूड फ्रॉम पुणे, दे सेंट मी अ पिज्जा ऑल द वे फ्रॉम पुणे। तीन, आई थिंक 4 घंटे वो रोड से आए और मुझे यहाँ आके
पिज्जा देके गए. So it was very very heartening to see कि सब लोग मुझे accept कर रहे हैं as a influencer. There were a few people who told me that, you know, तुम्हारा competition, it's not only half your age, but they are a half your weight too, because all these young influencers are really happening. But I said, no, I can do it, and I will do it, and here I am today. That's simply great, madam. Thank you for being here. You're truly an inspiration. Thank मतलब you. आप में जो इतनी एनर्जी है वो हम लोग तक आ रही है. जो एनर्जी है वो बहुत स्प्रेड हो रही है. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. Thank you. Thank you so much for having me.